دیکھا کہ میرے چینل کے پلے کچھ بھی نہیں رہا تو اس نے بہترین قسم کی بیگم لانچ کر دی. ساری عمر گزار دی میں مرن لگا. آپ اپنی فیملی دکھائیں اور مشہور ہو جائیں. یہ تو سوال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہر بندے ایک چیز تسی مینوں کڑی تے نہیں سمجھ رہے. ان کا نام میں لوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کا چینل بند ہو جائے. باہر جا کے بھی ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. میں نے کبھی کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کی مجھے ان کی ضرورت پڑے. السلام علیکم ناظرین, میں رضوان دی سٹی آف لو صادق آباد سے. پاکستان کا ہر بندے نے, سارے نہیں لیکن اکثریت نے نیگیٹو چہرہ دکھانے کی بہت کوشش کی ہے, اور انہی لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس نے پاکستان کا پازیٹیو مثبت صاف چہرہ دکھایا ہے. نہ صرف انہوں نے پاکستانیوں کو دکھایا ہے بلکہ دنیا کو انہوں نے دکھایا ہے, اور بہت اچھے انداز سے وہ بات بھی کرتے ہیں, ہنس مکھ بھی ہیں. میری مراد ٹریول ود زنیر کے اونر جناب زنیر کمبو صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. ਵੀਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਆਉਣ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ. جزاک اللہ. اور سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو میک اپ ہے یہ کتنے کا اپنے آرٹسٹ رکھے ہوئے ہیں؟ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤੀ ਜੀ. ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ. تو بھائی جان کون سے میک اپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنے فیس کا میک اپ. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کیمرے کے سامنے آنے والے ہیں نا, کسی کے ساتھ ایک, کسی کے ساتھ دو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کتنے؟ میں نے یہاں پہ بیٹھتے وقت یہ بٹن بھی نہیں بند کیا, اور جب نہایا ہوں تو آج نہیں, مجھے یاد نہیں کہ میں نے کئی سالوں سے چہرے پہ شاید صابن بھی نہیں لگایا نا. اگر رستے میں کہیں زیادہ گندا ہو جائے تو صابن کے ساتھ دھو لیتا ہوں, ورنہ کلیئر بلیک شیمپو کے ساتھ سر دھوتا ہوں اور وہی جو جاگ بنتی وہی منہ پہ لگا لیتا ہوں. اچھا, کوئی میک اپ نہیں. یہ شروع سے ایسے ہیں؟ شروع سے ایسے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, کئی لوگ نا اپنے کسی خاص بات سے, کسی خاص ڈائلاگ سے مشہور ہوتے ہیں. ہاں, آپ ایک عام زنیر کمبو, دنیا کو جاننے والا, جس نے دنیا نے جس کو جانا, وہ زنیر کمبو کب بنا اور کون سی ویڈیو سے بنا؟ یہ شروع کی بات ہے جب کرونا تھا, اور میں نے اس میں شروع میں اور ابھی تک بھی لفظ بیرا استعمال کرتا ہوں. تو بیرا جو ہے ویسے پنجابی کے اندر 90% دنیا میں ویرا لفظ بولا جاتا ہے. ویر بھی کہا جاتا ہے, ویرا بھی کہا جاتا ہے, ویرے بھی کہا جاتا ہے. تو کچھ ٹیپیکل پنجابی کے جو لوگ ہیں وہ لفظ بیرا استعمال کرتے ہیں. ہمارے فیصل آباد کے اندر ایک برادری ہے جو بہت زیادہ تعداد میں انصاری برادری, تو وہ جتنے مائیگریٹڈ ہیں ہمارے ہاں, جو کھڈیاں لگی ہیں جنہیں لومے بولتے ہیں, وہ بھی اسی برادری نے زیادہ لگائی. تو وہ میرے زیادہ قریبی دوست بھی انصاری برادری تھی, تو وہ آپس میں ہم لوگ ایسے ہی بولتے تھے, بیرے کداں, بیرے کتھے. تو وہ جو اوریجنل زنیر تھا پہلے دن بھی وہی کیمرے کے سامنے آیا, اور آج کے دن تک بھی وہی ہے. اس وقت بھی ایسے ہی جو کپڑے لبے اللہ لے پالے, اور آج بھی ویسے ہی ہیں. زنیر بھائی, یہ جو ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے, ہاں ہاں, دنیا نے دیکھا ایک بندے نے 2 یاگ قربان کی ہیں, اور وہ پورے پاکستان کے باہر ٹریننگ میں رہے ہیں. کسی نے فتوے لائے, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا. ڈر کے چھڑ دیتا یا پھر لے کے ہو گئے؟ ایک ہی مکتبہ فکر کے علماء نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا تھا. اچھا, اس کے علاوہ اور کسی نے فتویٰ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ آپ کے اوپر بھی فتویٰ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ 4 جو جانور ہیں, ان کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی لاتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ذبح کیا اور نہ اس کا حکم دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر تھے, مسلمان تو صرف عرب تک محدود نہیں ہے, مسلمان تو برفوں میں بھی رہتے ہیں. وہ والے جانور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تھے, وہ والے جانور اگر آپ ہمالیہ کی بلندیوں پہ جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں, ہندو کش میں, کراکرم میں, وہاں پہ لے جائیں تو اللہ لے جدہ مراسی ٹھنڈ نال مار جان گے, اتنا جانور بھی ٹھنڈ نال مار جان گے. تو جب ماحول اور خطہ چینج ہوتا ہے تو شریعت بھی اپنی جو ہے, ہماری کوئی شریعت اتنی سخت تھوڑی ہے جتنی بیان کی جاتی ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. بالکل, ابھی وہ صرف عرب کے تو نہیں تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, ہیں اور رہیں گے.
वो तो अपने से आने वाले पहले अंबिया के लिए भी रहमत थे। बिल्कुल ऐसे। अभी शायद आपने भी वो सुना होगा, मौलाना तारक जमील साहब का भी एक इंटरव्यू हुआ है, जी जी। ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। हाँ हाँ उन्होंने कहा जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारा दीन सिर्फ फकीरी में नहीं है, हर मकतब, हर नस्ल, रंग, मज़हब, हर एक के लिए। अच्छा, मैंने कोई भी मौलवी जो किसी भी मकतबा फ़िक्र का हो, जिसको मैं हुक्मरानों के इर्द गिर्द घूमता देखूं, मैं उन्हें नहीं सुनता, उन्हें अच्छा, मैं पसंद आप नहीं नहीं करता। तो लेकिन इनका आजकल इख्तलाफी वो ट्रेंडिंग में चल रहा था ये इंटरव्यू, इसलिए ये भी आए और वही एंकर एक फितने के पास भी गया था, तो उस फितने वाली वीडियोस भी मैंने सुनी और देखी। अल्लाह पाक मुझे, आपको और हमारी उम्मत मुस्लिमा को उस फितने से महफूज रखे। मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाला था कि आपका मजहबी रुझान में किस आलम से आपकी मतलब ज़्यादा रग़बत है? बिला तफरीक और बिला किसी शक व शुबा हमारे यहाँ जब लोग टिक टॉक पे मशहूर हो जाते हैं, तो मैं तो एक आम बंदा हूँ, एक दुनियावी कंटेंट है टूरिज़म का, हमारे बड़े बड़े मौलवी भी अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपने तारिक जमील का नाम लिया, तो वो उल्फत लेने के लिए, लोगों की हमदर्दी लेने के लिए, जिनको वो अली अली मौला अली, वो इस तरह के नारे भी लगाने लग जाते हैं, और हम बरेलवियों को अपनी तरफ खींचने के लिए या रसूल अल्लाह इस तरह की बातें भी करने लग जाते हैं। अंदरों पूरे पक्के ने जिदे नाल है, अंदरों पूरी गेम पांदे ने। पहले बंदे को उनके जैसा बन के दिखा के हम सिर्फ मुसलमान हैं, वो जब बातों में आ जाता है फिर उन्होंने अपने नाल पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए मैं उनमें से नहीं हूँ। हम छाती तान के बताते हैं कि हम उस मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जिस तरह सहाबा मोहब्बत करते थे हुजूर से, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक हुजूर से मोहब्बत करता है। नहीं, फिर भी मतलब किसी आलम को सुनते हो? उनका नाम मैं लूँगा तो हो सकता है आपका चैनल बंद हो जाए। नहीं होता। नहीं, खादम हुसैन रिजवी साहब मेरी इंस्पायरेशन है और मेरी अपना, हम उनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और सिर्फ उनसे नहीं बल्कि अपने मसलक के तमाम उलमाए हक से जो बाअमल हैं उनके साथ मोहब्बत रखते हैं, और बिला किसी शक व शुबा के रखते हैं, छाती तान के रखते हैं। अच्छा, मैं मतलब एक छोटे से शहर में छोटा सा एक मेरा कारोबार है, लेकिन मेरे कारोबार का भी एक डुप्लीकेट है इस टाइम ना। अच्छा, मतलब कोई मेरा नाम इस्तेमाल करता। अच्छा, अगर मैनू बिलफर्ज सलाजीत लैनी आ, मैं जुनैर साहब दी वीडियो लभदा वां, लभ के उस बंदे नू फोन करदा वां, वो बंदा अगों कहंदा जी मैं जुनैर साहब दी टीम दा वां, ठीक है, तो मैं सलाजीत भेज देवांगा। तुहाडे नाल भी इदां हुंदा? मतलब मिनी जुनैर या फेक जुनैर सामने होंगे कभी? मैं बेसिकली सादकाबाद रहीम यार खान जो आया हूँ, यहाँ पे स्कैमर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और मेरी उन तक पहुँच हो गई। स्कैमर भी तो बाहर दे मुल्कां जाके मंगण वाले भी। यार यहाँ के लोग नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन वेरी सॉरी, भले वो पंजाब से ही ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मक्के मदीने में तंग आ जाता है ना बंदा जब आपकी शलवार कमीज़ दे। हमें ये होता है, हमने फ़ख्र पहना हुआ है अपना, हाँ। लेकिन जब हमारी शलवार कमीज़ देख के हमें जलील किया जाता है, तो फिर जो मांगने वाले होते हैं उनको हम हाथ से पकड़ते हैं, हराम दे तू कित्थों दा है, वो कहना तो मेरी मीनिंग तो कित्थों दी हैं। नहीं, आप रहीम यार खान का नाम ना लें। तो मैंने खुद निकाले हैं वहां से, मैंने खुद भी देखे हैं। वल्ला मैंने इस पट्टी के लोग बहुत निकाले हैं, मेरे मोबाइल में अभी भी मौजूद है, जिनकी मैंने वीडियोस भी बनाई है, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा यार पीछे गुंबद खजरा नजर आ रहा है, जुनैर भाई ना पोस्ट करें। 2 वाक़यात आपने मुझे सुनाए थे, वो वीडियो में बताना पसंद फरमाएंगे? कौन से? वो जेडे उत्थे मंगते वाले सी, एक औरत वाला, हाँ वो एक अपना ਤੁਹਾਡੀ वालदा वाला सी। मेरी वालदा को, अच्छा मज़ेदारी की बात बताऊं, उस दिन अपनी वालदा के साथ मैंने यही सूट पहना हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये अपना पाशा वाले हैं, बड़ा एक्सपेंसिव है कपड़ा उनका, ये उनका कपड़ा है। तो अभी तो मैंने वो आईफोन की एप्पल की वॉच नहीं लगाई, तो वो लगाई हुई थी, हाथ में इसी तरह आईफोन पकड़ा हुआ है, और मैंने ग्लासेस जो हैं वो बड़े महंगे और कॉस्टली लगाए थे, भले मुझे फ्री मिले थे। तो इस तरह बैठे हैं, दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ले मेरी अम्मी ने भी ना लो 2 रियाल दे गए। आके एक भाई ने पूछा है पाकिस्तानी, तो अब मेरी अम्मी को इतनी तो समझ आती है
पाकिस्तानी क्या उन्होंने कहा हाँ पाकिस्तानी, उन्होंने 2 रियाल मेरी अमीर रखते, 2 रियाल साथ मेरी दोस्त की वालदा थी उनको भी दे दिए। ये हमारी हालत है। उनको पता है कि जहाँ पे पाकिस्तानी, चाहे वो अवाम हो चाहे वो हुक्मरान हो, 2 रियाल रख दो जान छोड़ जाएगी, नहीं तो मगर पे रहेंगे। अच्छा वो दूसरा नहीं, वाक़या। हुक्मरान 2 रियाल पे नहीं मानते यार हाँ वकी 2 रियाल देखो वो तंजिया हुआ, मैं मांगने नहीं आया, उनकी डिमांड ज्यादा है। हमारी मजबूरी है। हाँ। अच्छा दूसरा यही वाकया कि उधर एक नहीं 20 लोग मिले ना, हाँ और वो जब मांग रहे होते थे, अगर वो नहीं भी बोल रहे होते थे तो जब हम उन्हें करीब जाके ऑब्जर्व करते थे वो पाकिस्तानी निकलते थे, और वेरी सॉरी आपकी पट्टी के निकलते थे। ऐसे ही है। पिछले दिनों में देख रहा था कि इन इलाके के लोगों को ऊपर ख़ास सख्ती है फलां ममालिक में, उनमें आपका ये ज़िला रहीम खान भी था। नहीं वो दूसरा जो वाक़या कह रहे थे वो रोज़े रसूल के सामने वाला, खातून आई थी, हाँ गिट्टा निकल गया मेरा। हाँ वहाँ पे हम अफ्तारी कर रहे थे तो ऊंची ऊंची रोने लग गई एक खातून अचानक, तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, हम सारे उसकी तरफ मानूस हुए कि इसे पता नहीं क्या हो गया है। तो सबसे आगे बढ़ के मैं और असद भाई थे मेरे साथ, उनका दिल ऐसे ऐसे करने लग गया कि यार अल्लाह इस खातून को क्या हुआ, तो उसका पाँव ऐसे टेढ़ा था, तो हम उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। असद भाई भागे शुरते के पास, एम्बुलेंस मंगवाओ, ये हो गया वो हो गया। तो एक मोहतरमा आई पाकिस्तानी, वो कहती जुनैर भाई मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो इसी मोहतरमा को मैंने कल मस्जिद नबवी ही में किसी और लोकेशन के ऊपर यही हरकत करते देखा है। तो ये एक्टर हैं, इसके साथ इसी मजमे में 2-3 ख़वातीन हैं जो इसको उठाएंगी, हाथ फेरेंगी, सबसे पहले पैसे भी वो देंगी, और मेरे देखते ही देखते उसे कोई 20 रियाल दे रहा था, कोई 50 रियाल दे रहा था, कोई 10 रियाल दे रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली उनका लहजा भी यही था। जुनैर भाई आपने कितने कंट्रीज का टूर किया? काफ़ी ज़्यादा, मेरा ख्याल 10 क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो अफ्रीका का रहा है। अच्छा। हालांकि इस वक्त इस हालत में हूँ कि किसी भी मुल्क का जिसका वीज़ा मिलता हो मेरे पासपोर्ट के ऊपर मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मैं देखूँ बिल्डिंग्स ज़्यादा कहाँ पे हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा कहाँ पे है, मुझे नेचर लाइक है, जंगल चाहिए। और वो वीडियो भी आपकी बहुत ज़्यादा फेमस होती रही है अफ्रीका वाली, वो जंगल में जंगली जानवरों के साथ। कोई ऐसा यादगार वाक़या आपका सफ़र के दौरान, मतलब कहता होगा यार ये सफ़र का ये वाक़या मुझे सारी उम्र याद रहेगा? पाकिस्तानी है इंटरनेशनल? पाकिस्तान में तो कोई मुझसे रिश्वत मांगे तो मैं लड़ पड़ता हूँ, जितना मर्जी तगड़ा बंदा हो। मैं उसे कहता हूँ तुम भी जहन्नमी, अगर मैं तुम्हें दूंगा तो मैं भी जहन्नमी। बाहर जाके ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ तो सुनो, लेकिन बाहर जाके कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे मजबूरी बन गई थी। सही। उनकी आदत के अंदर है कि वो जब तक कुछ शिल ना लें वो किसी को नहीं छोड़ते। मलेशिया आप गए हैं? मलेशिया नहीं मैं गया, लेकिन मैंने वहाँ की भी तारीफ सुनी है कि वो भी जिम्मेदारी से पैसे लेते हैं। मैं ताई मलेशिया का नाम लिया। हाँ नहीं मैं उधर नहीं गया। अच्छा। तो होपफुली जाते वक्त वहाँ की लोकल करेंसी जेब में डाल के जाऊँगा। लेकिन अफ्रीका में आपको बताऊँ मैं 10-10, 12-12, 15-15 दिन अकेला, यानी अपने साथ जो दोस्त गया हो पाकिस्तान से, वो होता है, मैं होते हैं, और हम गाड़ी के अंदर घूमते रहते हैं। तो उनकी करेंसी इतनी वैल्यूएबल नहीं है, पाकिस्तान की तरह डाउन करेंसी है। तो शेलिंग उसका नाम है, शेलिंग हमने हाथ में रखे होते हैं। तो रास्ते में उनका कोई 3 फूलों वाला अफसर हो या आम शिपाटा खड़ा हो, भाईजान ऐसे हेलो हाउ आर यू जंबो, बस उसको वो 150 देने हैं, वो आपको बेहतरीन सलूट मारेगा और आपको जाने ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ 3-4 ਜਣੇ। ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧ ਚ ਫੜੇ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 200 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧ ਨੇ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਲੱਗਦਾ। सॉरी बड़ी प्यारी हरकतें करते हैं 50 लेने के बाद। अच्छा अभी बिलावल से याद आया, वो एक वीडियो है भाईजान वो खेल रहे हैं मेरे ख्याल में बैडमिंटन नहीं खेल रहा था, और कोई गेम थी, टेनिस
ਹਾਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਜਨ ਗੇਂਦ ਆਈ ਹੈ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਗੇਂਦ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੇਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ मेरे सामने कल टिकटॉक के फॉर यू में उनकी वो वीडियो आई थी। अच्छा भाई हाँ तो वो नाजुक लोग हैं तो नाजुक लोगों में नाजुक हाँ तो वो कोई इशू नहीं है, वो मम्मी डैडी और हैं पढ़े बाहिर हैं और सोने के चमचे में खाया पिया है तो वो उनके बस की काम नहीं है। सर जी आपने पहाड़ों में सारी उम्र गुजार दी, पहाड़ों से आपकी मोहब्बत और पहाड़ों को भी आपसे मोहब्बत, जरा इस सफर के बारे में थोड़ा सा सारी उम्र गुजार दी मैं मरन लगा ਹੁਣ तक दी सारी उम्र गुजार दी ਹੁਣ तक दी। मेरे वो वाले अयाम जो सोशल मीडिया पे नज़र आते रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम पहाड़ों के अंदर ही आपको नज़र आया हूँ। और मैं अगर पंजाब में हूँ भी मैं पंजाब की लगाता नहीं हूँ, सिंध में हूँ, मैं मेरा कंटेंट खूबसूरती दिखाना है तो इसलिए मैं अगर महीने में 10 दिन भी वहाँ पे रहूँ पहाड़ों में, सोशल मीडिया पे यही लगता है कि मैं 30 दिन वहाँ पे हूँ। अच्छा अच्छा वहाँ से डाटा कलेक्ट करके ले आते हैं और इधर आके एडिट करके लगाते रहते हैं। कैसा ये लगता है आपको सफर नेचर? अच्छा मैं एक बार मैं गया हूँ सिर्फ नलतर हुंजा गिलगित, वो लोग बहुत अच्छे यार, बहुत खूबसूरत पट्टी है, अपना लोग भी अच्छे हैं। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਮਿਲੇਗਾ हर बंदा खुश इखलाकी नाल मिलेगा। आपका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है तो आप जिस जगह पे बैठे हैं अगर इधर ही अगर अंदर देहातों में निकल जाएं तो वो पंजाबी में कहेंगे परोना आ गया, हाँ बिल्कुल बहुत प्यार करेंगे। तो जहाँ पे भी सादा लोग हों, वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, बल्कि मैंने मेहमान नवाजी की जो शिद्दत पसंदी बलूचिस्तान के अंदर देखी है मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। गिलगित बल्तिस्तान हो जहाँ पे सादा केड़े वाली मेजबानी एक तो वो भी है ना शनातीगढ़ वेख के दे वो चंद शहर पसंद अनासर हैं, अल्लाह पाक उनसे महफूज रखे। मेरा गालिब गुमान है और मेरा ईमान है कि बलूचिस्तान की मेजॉरिटी भी उन कुत्तों और बदबख्तों को पसंद नहीं करती होगी। सही है, वो कोई ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो जो सिर्फ पंजाब का आईडी कार्ड देख के इस तरह की हरकतें करते हों। पूरी दुनिया भर में इस तरह की हरकत कोई भी करे वो बेगैरत है। आपको जिससे इख्तलाफ है, अगर मैं और आप वहाँ पे चले जाएं, हमने ज़िंदगी में बलूचिस्तान या किसी बलोची का नुकसान नहीं किया तो अगर कोई बिला वजह हमें वहाँ पे नुकसान पहुँचाए, ईज़ा दे तो उसकी कम ज़रफ़ी है। मेहमान को घर बुला के इस तरह की हरकत करता है तो वो बगैरती के आला दर्जे के ऊपर फायज है। वो बलोची कहना तो उसको बहुत दूर की बात है, उसको मुसलमान कहना या इंसान कहना भी अच्छी बात नहीं है। जुनैर भाई ज़िंदगी का कोई ऐसा गम दुख जड़ा याद रहता होवे? दुख अक्सर याद ही रहते हैं लेकिन मेरे अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, मुझे दुख बहुत कम मिले। सही, ऐसा मिलया होवे जड़ा याद रहता होवे? जब आपका कोई करीबी दोस्त जिसने आपके साथ ज़िंदगी का एक वक्त गुजारा हो वो महज चंद टकों पे आपको अपनी औकात टके की भी साबित ना करे तो उसके जाने पे दुख होता है। सही। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आजकल ट्रेंडिंग पे है कि आप अपनी फैमिली दिखाएं और मशहूर हो जाएं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चंद एक नाम भी ले लूँगा। आप नाम लें या ना लें उसमें कसूर उन बगैरतों का नहीं है, अवाम देखने वालों का है, अवाम का है। अवाम क्यों देखती है, अवाम क्यों सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को? अवाम को नहीं पता उनके कंटेंट का सिर्फ उनको फ़ायदा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपको सिर्फ आंखों की ठंडक जहन्नम की थोड़ी सी आंखों की ठंडक। अब डक्की का जिस तरह का जिस्म है, अल्लाह माफ़ करे, आपने उन्हीं का नाम ही लेना था ना, तो एक दो और नमूनों का नाम ले लेंगे, उसको देख के क्या आंखों की ठंडक मिलनी। बल्कि आपका अच्छा भला भी मूड हो तो उस नमूने को और उस कार्टून नेटवर्क को वो तो अब जब उसने देखा कि मेरे चैनल के पल्ले कुछ भी नहीं रहा, मैं कब तक अपनी वो फीकी फक्की बेचूंगा, तो उसने बेहतरीन किस्म की बेगम लॉन्च कर दी। बीवी खूबसूरत होनी चाहिए हम मानते हैं, लेकिन वो आपकी निगाह तक खूबसूरत होनी चाहिए। लोगों के लिए उसका जिस्म जो है वो हाजिर खिदमत नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा आपका एक यार दोस्त भी है, आपकी अक्सर महफिलों में वीडियो में नज़र आता है और पाकिस्तान का फ़ख्र है, मैं उसको समझता हूँ, अरशद भाई। अरशद भाई, अरशद रील वाला।
हाँ अरशद भाई सियालकोट वाले माशाल्लाह यार, 10 मिलियन सब्सक्राइबर और वाइफ की आंखों के अलावा उसकी किसी ने आज तक नहीं देखा, उसके हाथ नहीं देखे। एक्चुअली अरशद भाई जो हैं वो उनका सारा कुछ उनकी फैमिली है हाँ, और वो फैमिली के अंदर ही रह के उन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है और फैमिली व्लॉगर होने के बावजूद उनकी फैमिली किसी ने देखी नहीं है। तो वो भी उनकी एक ये जो अपनी बीवी की खूबसूरती जिस्म कमर की लचक दिखा के लोगों को ललचाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल अरशद भाई है हाँ, कि यार अगर अल्लाह ने आपके लिए आपके मुकद्दर में फेम लिखा है तो फेम ऐसे भी मिल सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने अपनी बीवी की चीख मरवा के लोगों की वो लेनी है, अपना प्रायोरिटी लेनी है, उनकी तवज्जो लेनी है। हाँ जी। जुनैर भाई, आखिर में आप हमारे सादकाबाद के कुछ मशहूर सादकाबाद के मशहूर लोग हैं जिनमें अजीम कम्बो, मियाँ आसफ सत्तार, जाहिद निसार साहब हैं, इनके बारे में आप कुछ कहना आपने तो मुझे कहा था पॉडकास्ट में सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये आपने कैसी बात शुरू कर दी? माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी मोहब्बत यहाँ पे खींच लाई है। तो अली साकिब भी हैं, अली साकिब भाई भी हैं, ज़ाहिद नसीर साहब भी हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਜੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ। हकीम साहब इतनी ज़बरदस्त शख्सियत हैं कि उनका खुद का इलाज होने वाला है। तो हकीम साहब को अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। चोरी अजीम साहब तो वैसे हमारे रिलेटिव हैं, हमारी जान है। तो चोरी साहब को जब भी याद किया मुश्किल वक़्त में, अच्छे वक़्त में, तो चोरी साहब माशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। नर बंदा बिल्कुल। और जाहिद निसार साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह उनकी हरकतों से लगता है वो जाहिद निसार कम और साकब निसार ज़्यादा हैं। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपने बड़ी प्यारी और स्पेशली आपने शुरू में इंट्रो दिया, मैं उन खूबसूरत अल्फाजों के काबिल नहीं था, तो शुक्रिया आप अपने चैनल पे हमें इतने अच्छे अल्फाज में याद किया। नहीं जुनैर भाई, आपकी आला ज़रफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आपने बजाय ये कि फैमिली शो दिखाते कोई वल्गर गल्ला करके इधर उधर नहीं, आपने पाकिस्तान का मुस्बत और अच्छा चेहरा दिखाया। और अगर मैनू हुकूमत मिल गई ना तो मैं वज़ीर ख़ारजा ला देंगा, यकीन मनो। वज़ीर ख़ारजा का तो टूरिज़म का वज़ीर क्यों नहीं, वो मैं अपने को रखांगा। अच्छा उसके अलावा आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उससे मैं बहुत सारा इंस्पायर हुआ था। वो आपने लोगों को मोटिवेट किया था कि आप यहाँ पे आकर गंदगी ना फेंके। बिल्कुल ऐसे आपको याद होगा वीडियो, टेम्पर वगैरह। देखिए इस वक्त हम घर में बैठे हैं, इस घर के मकीन कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे वो खुद या हम बच्चे का पैम्पर या लेस सरेआम फेंके। हाँ, तो इसी तरह पूरा मुल्क हमारा घर है, ऐसे ही हम भी अपने घर में कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की हरकत करें। और जो लोग इस मुल्क के अंदर इस किस्म की हरकतें करते हैं, गंद फैलाते हैं, वो बेसिकली अपने घर से, अपनी तरबियत से, अपने माँ बाप से वो गंदे लोग हैं। अल्लाह पाक उन्हें एक अच्छा मुहज़्ज़ब इंसान, मुसलमान और पाकिस्तानी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, वेलकम।